पीवी न्यूज। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। बल्लभपुर निवासी मानस पाल एवं अनन्या पाल ने नाट्य मंचन द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। रानीगंज पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में काफी सख्ती से नाका चेकिंग की गई। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। बल्लभपुर के राम गोपाल सराफ स्कूल के समीप काफी गंदगी का अंबार देखा गया। मोइरा बांध हनुमान मंदिर प्रांगण में जेमेरी युवा टीएमसी द्वारा अंचल के 150 जरूरतमंदों को राशन सामग्री दी गई। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने कालाबाजारी करने के आरोप में राशन डीलर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जेमेरी बॉयज क्लब द्वारा रविवार से भूखों को भोजन प्रदान करने का कार्य आरंभ किया गया। गरीब परिवारों में राशन न मिलने पर जामुड़िया बीजेपी टाउन मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बाकुड़ा आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशन संलग्न बसनी इलाकों में खाना खिलाया गया। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के बल्लभपुर अंतर्गत रायपाड़ा में रहने वाले नाटक कलाकार मानस पाल एवं उनकी बहन अनन्या पाल ने नाट्य मंचन द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। रानीगंज के बल्लभपुर अंतर्गत रायपाड़ा में रहने वाले नाटक कलाकार मानस पाल एवं उनकी बहन अनन्या पाल ने नाट्य मंचन के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में बंगला यात्रा को काफी महत्व दिया जाता है एवं पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग बंगला यात्रा को काफी शौक से देखते हैं। अतः लोग संस्कृत कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की संस्कृति कला पर ही निर्भर है। इसी के मद्देनजर नाटक कलाकार मानस पाल एवं अनन्या पाल ने देश में फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु एक नाट्य मंचन कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि लोग उसे देखकर जागरूक हो सके एवं लॉकडाउन की परिस्थितियों का पालन भी सही से करें। আমি থাকতে এই অভিলাষ তোমার কোনোদিনও পূর্ণ হবে না। কে তুমি? আমি ভারত মাতা। আমি আমার বুক দিয়ে 130 কোটি সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবো। তুমি জানো না, আমার এই ভূমি অত্যন্ত পবিত্র, ধর্মপ্রাণ। এখানে সমস্ত ধর্ম মিলে মিশে একসাথে থাকে আর তারা একসঙ্গে তোমার সাথে মোকাবেলা করবে। না না, পারবে না তুমি ভারত মাতা, তুমি পারবে না। তুমি জানো না, আমার এই মর্তে 33 কোটি দেবতার বাস, যারা আজ এই মর্তে তোমার সাথে মোকাবেলা করছে ডাক্তার রূপে, নার্স রূপে, সাফাই কর্মী রূপে, পুলিশ রূপে। আরো কত সেবায় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের সেবায়। তাই আমি নিশ্চিত তুমি হারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও জানি তোমার এই ভারতবর্ষ অত্যন্ত পবিত্র, তোমরা সব পারো। কিন্তু কিন্তু আমার তো সবাইকে চাই না, কয়েকজন হলেই তুমি পরাজিত হবে। আর আর সেই কজনই আমাকে বিজয়ী করবে। ওই দেখো কত জটলা, তাদের তাদের কোনো কাজ নেই, তাও তারা জটলা করে আছে। আমি আমি তাদেরকেই তো চাই। আমি অদৃশ্য, আমি নিঃশব্দে তাদের শরীরে প্রবেশ করে বংশ বিস্তার করে একে অপরের শরীরে ছড়িয়ে পড়ব। প্রথমে হবে সর্দি, কাশি, জ্বর, তারপরে কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই ভারত মাতা, কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় আছে, উপায় আছে। আমি তোমাকে ধ্বংস করবই। না, কিছুতেই না, তুমি পারবে না। আমাকে যে পারতেই হবে। আমার সন্তান কারণ ভারতবর্ষ এখন করোনায় আক্রান্ত প্রচুর মানুষ হয়ে গেছে। তো আমাদের ভারতবর্ষে ঐতিহ্য ছিল যাত্রাপালা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হতো, কিন্তু এখন তো সেগুলো খুব একদম হয়ে গেছে। তো তাই জন্য আমরা ভাবলাম যে একটা নতুন কিছু করে পরে মানুষকে যদি আমরা একটু সচেতন করতে পারি, একটু যদি মানুষ সচেতন হয় তাহলে তো খুবই ভালো হয়। করোনা আক্রান্ত হয়ে গেছে গোটা দেশ, এবং এই জন্য আমরা করেছি যাতে একটু হতে পারে।
মানে একদিকে বলা যেতে পারে স্কুল হ্যাঁ, স্কুল ছুটি আছে, টিউশনগুলো তো এখন বন্ধ আছে, সবই বন্ধ আছে। তো একদিন বলা হলো যে করবি, প্র্যাকটিসের মাধ্যমে একদিন করা হলো। কি নাম? অনন্যা পাল। এই ভাবনাটা আমাদের এই কারেন্ট সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করেই আমি এটা চিন্তা ভাবনাটা আমার মাথায় আসে যে আমরা যদি আমরা 2-4 লাইন লিখে বা 2-4 লাইন যদি আমরা যাত্রা বা নাটকের মাধ্যমে যদি আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি, তাহলে হয়তো সমাজের কিছু উপকারে লাগবে। যদি সমাজ সচেতন হন, সমাজের যেসব ব্যক্তিরা এইসব লকডাউনকে খুবই হালকাভাবে নিচ্ছেন, তাদের কাছে যদি এই বার্তাটা পৌঁছায় যে হ্যাঁ এইভাবেও একটা বার্তা দেওয়া যায়, সেই জন্যই আমরা মানে এই চিন্তা ভাবনাটা আমাদের মাথায় আসে এবং আমরা একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছি যে সমাজের যদি কোনো কাজে লাগতে পারি আমরা এই লকডাউনের মাধ্যমে। বাড়িতে বসে আছি, আজকে ডাক্তার বলুন, পুলিশকর্মী বলুন, যারা সেবা করছেন, আপনারা যারা ফ্রন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে যেভাবে মোকাবিলা করছেন, আমরা তো ঘরে বসে আছি, আমরা ঘরে আমাদের কোনো কাজ নেই। তো তার মাধ্যমেই যদি আমরা আপনাদের একটু সহযোগিতা করতে পারি, আপনাদের কাজ যদি একটু হালকা করতে পারি, যে হ্যাঁ এইভাবেও মানুষকে সচেতন করা যায়। আমাদের দেশে দেখুন, আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে শুরু করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেল বারবার একটাই অনুরোধ করছেন সবাই। অ্যাকচুয়ালি এটার চিন্তাভাবনা হচ্ছে, আমি যেটা বললাম যে এখন টিভি সিরিয়ালে দেখবেন ছোট ছোট এপিসোড হয়, এখনকার জেনারেশন এইগুলো দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু একসময় যে যাত্রা, আমাদের গ্রামাঞ্চলের যে যাত্রা, যে ঐতিহ্যপূর্ণ যাত্রা, এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বলুন, উড়িষ্যা বলুন, এগুলোতে যাত্রার একটা ভালো প্রকোপ ছিল এবং আগামী দিনের মানুষরা এই সব যাত্রাকে শুনতে দূর দূরান্ত থেকে যেত। এবং আমিও এক সময় যাত্রা নাটক করেছি আমার স্টুডেন্ট লাইফে বলুন, স্টুডেন্ট লাইফের পরেও বলুন। তো আমি অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সাথেও আমি করেছি, সেই সুযোগ পেয়েছিলাম, তাদের কাছ থেকেও একটু শিখেছি। তো আমার হঠাৎ চিন্তাভাবনা এলো যে আমরা যদি সেই যাত্রাটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি এবং সমাজের চোখে এখনকার দিনের যেসব নিউ জেনারেশন, সেই যে নিউ জেনারেশন এই টিকটকের ছেড়ে যদি আপনার একটু যাত্রা বা একটু নাটক বা একটু সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের যে কালচার জিনিসটা, সেই কালচার জিনিসটাকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, এর মাধ্যমে যদি আমি করোনা সচেতনটাকে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় সমাজের কিছু হলেও উপকারে আসবে। তো সেই চিন্তাভাবনা নিয়েই আমি লিখেছিলাম এবং সেই চিন্তাভাবনা নিয়েই আমি আপনার এই যাত্রাটা উপস্থাপন করেছি। আমার নাম মানস পাল, আমি বল্লভপুর রায়পাড়া রানীগঞ্জে থাকি। নাটক মানে যাত্রাটা আমি লিখেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता तथा लॉकडाउन की परिस्थिति के मद्देनजर रानीगंज पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में काफी सख्ती से नाका चेकिंग की गई। तो चलो सुबह मोड़े चले जो गाड़ी आ रहा है आधी गाड़ी आती है আপনার মাস্ক রেখে একদম ছাড়লো না নাটকগিরি চলছে না। টাকা দিতে গেছিল এখানে বাড়ি পাঞ্জাবি মোড়ে ওটা বলে দিতে হবে নাকি আপনাকে? আরে পারমিশনে বেরিয়েছিল আদৌ? পারমিশন আছে তো ব্যাংকে যাওয়ার। মিথ্যা কথা কি জন্য বললেন? আইডিয়া ले रहा है আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়? বলে দিয়েছে কারণ আমি আপনাকে ওখানে জোর ফুল চাপাতে হয়। কালকে অফিস আপনার বাড়িটা কোথায় বললেন? এই এখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, হাঁটি নিয়ে চলে যান। গাড়িটা নিলে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे राज्य में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रानीगंज के वार्ड नंबर 93 को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। ভিডিওটা ভালো করে মিডিয়াটা পাঠাবো।
यार गड़बड़ा दिली तो इसे अबे हाफ प्लेट ये तो पड़ी दीजिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज स्थित बल्लभपुर के राम गोपाल सराफ स्कूल के समीप गंदगी का काफी अंबार देखा गया, जो कि काफी चिंताजनक स्थिति है। रानीगंज स्थित बल्लभपुर के राम गोपाल सराफ स्कूल के समीप गंदगी का काफी अंबार देखा गया। वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से एक ओर जहां सभी इलाके को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस इलाके में काफी गंदगी देखी जा रही है एवं यह गंदगी कूड़ेदान से निकलकर सड़कों तक आ गई है। लोग इस गंदगी की वजह से काफी परेशान हैं। एक ओर प्रशासन की ओर से जहां राज्य के सभी गली मोहल्ले इलाकों को स्वच्छ किया जा रहा, वहीं इस इलाके में गंदगी का यह ढेर चिंता का विषय बनी हुई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन ओल्ड माइंस मोयरा बांध हनुमान मंदिर प्रांगण में जेमेरी युवा टीएमसी द्वारा अंचल के 150 जरूरतमंदों को रविवार को चावल, आलू, प्याज इत्यादि सामग्री प्रदान की गई। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन ओल्ड माइंस मोयरा बांध हनुमान मंदिर प्रांगण में जेमेरी युवा टीएमसी द्वारा अंचल के 150 जरूरतमंदों को रविवार चावल, आलू, प्याज इत्यादि सामग्री प्रदान की गई। यह राशन सामग्री आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक के हाथों दी गई। इस मौके पर युवा टीएमसी के कार्यकर्ता संजीत मुखर्जी, आकाश चौधरी, पंकज यादव, चंचल बिंद, राकेश बिंद इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बाहरू बिंद, जाफर बिंद, प्रदीप पासवान, बसंती देवी, शर्मिला देवी, আজকে প্রথমেই আমাদের জেকেনগর এখানে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, এটা এই অঞ্চলে যারা বসবাস করে সেই গরিব মানুষ যারা এবং যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেছে এই কদিন লকডাউনের জন্য, তাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী আমাদের তৃণমূল ইউথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি যে করোনা যে মহামারী আজ সারা পৃথিবীতে চলছে, সেই কারণে প্রায় গত 1 মাসের উপর আমাদের দেশে লকডাউন চলছে এবং এরকম অনেক মানুষ আছে যারা দিন আনে দিন খায়। সেই সব মানুষদের আজকে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে, তাদের পরিবারের লোকজনদের প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের রাজ্য সভাপতি তার নির্দেশে সারা পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের খাদ্য সামগ্রী আমরা মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি। যেসব মানুষ আজকে এই করোনার পরিস্থিতির কারণে ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না, তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে, সেই সব মানুষদের পাশে আজকে আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেস দাঁড়াচ্ছে এবং আমরা আশা করব যে এই পরিস্থিতি থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসব এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এবং এই অঞ্চলে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে যেভাবে তিনি উন্নত করেছেন, মানুষকে সব রকম অসুবিধার কাছ থেকে তাদেরকে পার করে আনছেন, তার জন্য আমরা সবাই माननीय मुख्यमंत्री का कृतज्ञ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने गरीब लोगों के राशन को खुले बाजार में कालाबाजारी करने के आरोप में राशन डीलर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
दुर्गापुर थाना की पुलिस ने गरीब लोगों का राशन को खुले बाजार में काला बाजारी करने के आरोप में राशन डीलर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रविवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी की जमानत नामंजूर करते हुए 10 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। पकड़े गए आरोपियों में गोपाल मठ के मेजडीह निवासी बेनी माधव चैटर्जी, बेनाचिती सुभाष पल्ली निवासी चावल दुकान के मालिक निर्मल भौल एवं झंडा बाग निवासी पिकअप चालक भुवन गोराई शामिल हैं। इनके खिलाफ भादवी की धारा संख्या 379, 411, 406, 409, 120 बी IPC 27(1)A, IPC 27(1)A IEC एक्ट 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अरे आइए। आदमी हम गाड़ी पे जाना। যেতে দেখে না, যেতে দেখে না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। लॉकडाउन के दौरान काफी ऐसे रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें इस वक्त 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन जेमेरी बॉयज क्लब द्वारा रविवार से भूखों को भोजन प्रदान करने का कार्य आरंभ किया गया। लॉकडाउन के दौरान काफी ऐसे रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें इस वक्त 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन जेमेरी बॉयज क्लब द्वारा रविवार से भूखे को भोजन प्रदान करने का कार्य आरंभ किया गया है। संस्था के पदाधिकारी विजन मुखर्जी के नेतृत्व में 150 लोगों को रविवार दोपहर का भोजन प्रदान किया गया। इस मानव सेवा का कार्य आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक के हाथों शुरुआत की गई, जबकि इस मौके पर अंचल के युवा कार्यकर्ता संजीत मुखर्जी, आकाश चौधरी, पंकज यादव, राकेश बिंद, चंचल बिंद तथा क्लब के अन्य सदस्यगण उपस्थित हुए। উঠে আমরা এটা প্রতিদিন চালিয়ে যাব এবং আমরা প্রতিদিন 200 300 আমরা প্রতিদিনই বাড়াতে থাকবো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद। नेशनल मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसी बगान मोड़, रानीगंज।
Contact number 9332673300 9434313567. রান্নাঘরে আমি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरो सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, इंडोस्कोपी और क्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, and I wish them all the best and we should grow together. Thank you. আমি ডক্টর রাজর্ষি মুখার্জি, I am endocrinologist. My best wishes for Royal Care to grow and serve the people of Raniganj. Thank you. Royal Care Hospital, happiness is nothing but truthful advice. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत पुनियाटी स्थित भाजपा कार्यालय में लॉकडाउन को देखते हुए रविवार सुबह केंद्र सरकार द्वारा दिए गए खाद्य सामग्री पश्चिम बंगाल सरकार की सभी गरीब परिवारों में न मिलने पर जामुड़िया बीजेपी टाउन मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत पुनियाटी स्थित भाजपा कार्यालय में लॉकडाउन को देखते हुए रविवार सुबह केंद्र सरकार द्वारा दिए गए खाद्य सामग्री पश्चिम बंगाल सरकार के सभी गरीब परिवारों में लोगों को न मिलने को लेकर जामुड़िया बीजेपी टाउन मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि 26 अप्रैल तक पूरे पश्चिम बंगाल में इस लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार लोगों तक राशन दुकान के माध्यम से सभी लोगों तक राशन पहुंचाने की बात की गई थी, लेकिन आज भी यह सामग्री लोगों तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजू बावरी, सनी सिंह, अनिरुद्ध पासवान, दयामय नंदी, अनिरुद्ध चक्रवर्ती इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। তৃণমূল সরকার কেন্দ্রে চাল কোথায় গেল তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে। করোনার তথ্য গোপন হচ্ছে কেন মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও, করোনার তথ্য গোপন হচ্ছে কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার জবাব দাও। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबुलदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबुलदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने का काम आरपीएफ पोस्ट बाकुड़ा की ओर से कई दिनों से की जा रही है एवं आज भी आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशन संलग्न बस्ती इलाकों में खाना खिलाया गया। लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने का काम आरपीएफ पोस्ट बाकुड़ा की ओर से कई दिनों से किया जा रहा है। आज भी आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशन से संलग्न बस्ती इलाकों में खाना खिलाया गया। इस मौके पर आरपीएफ कर्मियों में उप निरीक्षक तापस चक्रवर्ती, संदीप कुमार, सीके स्वाई, एके नाग, बीपी बंदोपाध्याय, एसएल साहू, के तुंग, टी दे, एमआर बेसरा, एस प्रसाद, आर कर्मकार, एमएल मीणा, टीसी माझी, जी बेसरा समेत अन्य स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही तो थोड़ा सा दिया जाएगा। एक आदमी खड़ा रहो, उधर आ जाइए आप लोग।
আজকে বাঁকুড়া আরপিএফ থানা থেকে নিজেরা চাল ডাল ব্যবস্থা করে নিজে রান্না করে এই বাঁকুড়া স্টেশন কাছাকাছি 3টা গ্রামে খিচড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। আর প্রায় আজকে দেখছি 3জন গ্রামে 1000 থেকে বেশি লোকে খাবে। আর এটা আমরা দেখছি কি অনেকগুলো খেতে পাচ্ছে না, বাইরে যেতে পারছে না, সেই জন্য আমরা চাইছি কি কিছু কিছু আমরা নিজেদেরকে ব্যবস্থা করে নিজেদেরকে কন্ট্রিবিউশন করে ওদেরকে কিন্তু খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि सभी दुकानों को खोला जा सकेगा, मगर इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि इससे पहले संबंधित राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार की इस घोषणा के कारण व्यवसायियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसी के मद्देनजर रविवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से संदीप भालोटिया ने यह साफ कर दिया कि जब तक बंगाल सरकार एवं पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाती वह व्यवसायी अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। इस बाबत पुलिस के साथ साथ चैम्बर की ओर से भी घोषणा की जा रही है। साथ ही संदीप भालोटिया ने लोगों से मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर स्थान को सैनिटाइज करने पर भी जोर दिया। আমার জনসাধারণ এবং ব্যবসাদারদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেগুলেশন এখনো পর্যন্ত স্টেট গভর্নমেন্ট পায়নি, সুতরাং রাজ্য সরকারের দোকানপত্র ছাড়া অন্য কোনো দোকান খুলবেন না। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंने क्या रूल है जो दुकान खुल रहा है उसके बेसिस में क्या आप मैंने कहना चाह रहे हैं? देखिए जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने परसों यानी कि शुक्रवार को जो अनाउंस किया है कि सभी दुकानों को खोलने की उन्होंने अनुमति दी है, लेकिन उसमें क्लोज है कि राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति मिलने के बाद ही ये खोला जा सकता है। कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसमें हम लोग जो इसमें जांच पड़ताल करके जो नतीजा निकला है इसमें यही तथ्य पाया गया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जांच के बाद ही कहीं ना कहीं अनुमति देगा साधारण रूप से नॉन एसेंशियल दुकानों को खोलने की। कहीं भी नॉन एसेंशियल्स की दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं है। विशेष रूप से पश्चिम बर्धमान और रानीगंज के आसपास इलाकों में जैसा कि हम लोगों ने आप देख रहे हैं, हम लोग थाना के बाहर ही खड़े हैं हमारी चैम्बर की टीम, तो इसमें और उनका अनाउंसमेंट भी है। हम लोगों ने भी कल से रेगुलर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जब तक राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डिसीजन नहीं आ जाता है दुकानों को खोलने का लेकर, हम लोगों को दुकानें को खोलने की कोई हड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मास्क लगाने का, सैनिटाइजेशन करने का और ग्लव्स पहनने की जो एक हिदायत दी गई है उसे ज़रूर से माने, ताकि अपने आसपास के वातावरण को और अपने आप को हम लोग। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे पर उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बल्लभपुर निवासी मानस पाल एवं अनन्या पाल ने नाट्य मंचन द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। रानीगंज पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में काफी सख्ती से नाका चेकिंग की गई। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। बल्लभपुर के राम गोपाल सराफ स्कूल के समीप काफी गंदगी का अंबार देखा गया। मोइरा बांध हनुमान मंदिर प्रांगण में जेमेरी युवा टीएमसी द्वारा अंचल के 150 जरूरतमंदों को राशन सामग्री दी गई। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने कालाबाजारी करने के आरोप में राशन डीलर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जेमेरी बॉयज क्लब द्वारा रविवार से भूखों को भोजन प्रदान करने का कार्य आरंभ किया गया।
गरीब परिवारों में राशन न मिलने पर जामुड़िया बीजेपी टाउन मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बाकुड़ा आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशन संलग्न बसने इलाकों में खाना खिलाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।